नमस्कार बच्चों। बच्चों कल तक हम चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ रहे थे शॉक थेरेपी के बारे में। और चैप्टर क्या था? द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। सो द चैप्टर टोल्ड अस अबाउट द टू पोलर वर्ल्ड and in this chapter we came to know about two superpowers. One was America and one was USSR. So in such a manner we just came to know how two ideologies were sustaining in the time, capitalist and socialist, and how the things were changed after the disintegration of USSR, and there was the unipolar world, and who was the leader? US. So here we can see when the things were like this, there was a disintegration of USSR. So shock therapy was introduced, and in this therapy the transformation from the ideology of socialist to capitalism, socialist से कैपिटलिस्ट की तरफ सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और हमने इसके बारे में कल पढ़ा। पर चीज़ें इंसिडेंट्स इतनी रैपिडली चेंज हुए, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, कि इसके क्या परिणाम हुए। So first of all, before knowing about the consequences of shock therapy, we have seen earlier that yesterday what was happening, that this was the policy which was introduced by the capitalist countries, mainly US, because it was the unipolar world now. So in that manner, totally the things were changed, and the privatization was done by the Western countries, and whole scenario, whole economy has to be changed. Now what were the sequences? So it brought ruin to economy, disaster upon people. Ruin to economy, why? And disaster upon people, those who were accustomed for socialism. जब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है तो लोग जिस सिस्टम में सेट होते हैं, so they face so many issues regarding that. लोगों के लिए डिजास्टर आ गया कि एकदम से वॉट एवर थिंग्स वर सेटअप, इट वर टोटली चेंज। सो इट वॉज अ वेरी बिग चेंज। सो इट ब्रॉट डिजास्टर फॉर द पीपल, दोज हु वर अकस्टम्ड, दोज हु वर लिविंग विद द सिस्टम ऑफ सोशलिज्म। नंबर 2, in Russia, large state controlled industrial complex collapsed as about 90% industry sale to the private. और एक बहुत बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रीज थी उनका कोलैप्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि वी वर मूविंग टू द प्राइवेटाइजेशन। व्हेन द 90% इंडस्ट्री कोलैप्स, so it was a very big issue for the people, those who were associated with the industries. जो लोग उन इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड थे, जो उन इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क कर रहे थे, मतलब they were depending on the industries, so it was a big disaster for them. The next one, the restructuring was carried through market forces, not by government directed industrial policy. अब जो चेंज आया, वॉट एवर द चेंज, कि हमने कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ मूव किया, सो एक कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, नो पॉलिसी वॉज देयर, ओनली मार्केट फोर्सेस वर देयर विच वर just doing this transformation. So when there was the absence of policy, these market forces were doing the things as they want to do. उनका मतलब उन लोगों से नहीं था, those who are going to influence by the system, but they were doing the things in their favor only. So no certain policy was there for the particular industries. Now it led to virtual disappearance to entire industries. Virtually जो डिसअपेरेंस हो गया सारे इंडस्ट्रीज का, क्योंकि सभी को जो था प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करना था।
It means the industries which were set up for the welfare motive, they have to be converted into the private one. So it was a virtual disappearance. ऐसा लगा कि सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिसअपियर हो गई थी. मोस्टली द सिस्टम इन द सोवियत ब्लॉक वाज दैट वाज बेस्ड ऑन द पब्लिक वेलफेयर. तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया. लार्ज गैरेज सेल इन द हिस्ट्री, इसको क्या कहा गया? जैसे कोई गैरेज में सेल होती है ना, कि जो गाड़ियां होती हैं वो सेल आउट की जाती हैं, जो वैल्यूएबल होती हैं उनको भी डीवैल्यू कर दिया जाता है. सो ऐसा क्या माना, जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी वो भी वैल्यूएट कर दी गई, उनको उतनी कॉस्टिंग, उतना प्राइस उनका नहीं मिला. मतलब द थिंग्स विच आर प्रीशियस, विच आर गुड वंस, उनको उतनी उसकी कॉस्टिंग नहीं मिली. इट मीन्स इट वॉज अ वेरी बिग लॉस, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस था, इसलिए इसको लार्ज गैरेज सेल भी कहा गया. द नेक्स्ट वन, वाउचर्स टू सिटीजन्स फॉर पार्टिसिपेशन इन सेल. सिटीजन्स को सेल में पार्टिसिपेशन के लिए वाउचर दिए गए, पर लोगों ने उसे ब्लैक कर दिया. क्यों? क्योंकि दे नीड द मनी. इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. Let's understand by this, if we are living with the particular system from years, हम सालों से किसी सिस्टम में रह रहे हों और अचानक से वो सिस्टम चेंज हो जाए, सो कितना ज्यादा चेंज आ जाएगा. जैसे कि हमारे नोटबंदी हुई तो एकदम से द पीपल वर लाइक दे वर वेरी मच डिस्टर्ब कि वेयर टू गो, हाउ टू डील विद द थिंग्स. इनके पास पैसा था, वो एक्सचेंज कैसे कराते. तो जब कोई अचानक अनाउंसमेंट होता है, ऑल ऑफ सडन होता है, बिना किसी बहुत ज्यादा प्लानिंग वगैरह के, सो इट क्रिएट द इशू फॉर द कॉमन मैन. उन कॉमन मैन के लिए वो इशू होता है. तो वाउचर दिए गए तो लोगों ने उनको ब्लैक करना स्टार्ट कर दिया. ब्लैक करना क्यों? क्योंकि दे वांट टू गेट द मनी. पैसा लेने के लिए दे वर जस्ट सेलिंग द वाउचर्स. द नेक्स्ट वन, हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, पीपल लॉस सेविंग्स. व्हेन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था? प्रोडक्शन हो रहा था. अब प्रोडक्शन बंद हो गया क्योंकि अब वो स्विच ओवर हो रहा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज में. सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम इन दैट. देन व्हाट हैपन, जब चीजों की प्रोडक्टिविटी कम हुई तो मार्केट में उनकी डिमांड उतनी ही रही. डिमांड उतनी रहने से जो कम प्रोडक्ट था मार्केट में उसके प्राइस बढ़ गए और लोगों की सेविंग्स, लोगों ने जो पैसा इकट्ठा कर रखा था अपनी बैड टाइमिंग के लिए, वो सारा उनका पैसा अपनी डेली गुड्स को परचेस करने में खर्च हो गया बिकॉज महंगाई बढ़ गई थी. सो दिस वाज द इम्पैक्ट. द नेक्स्ट वन, कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी. अब हमने कल देखा था कलेक्टिव फार्मिंग होती थी लोगों के वेलफेयर के लिए, से इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो, सबको रिसोर्सेज पे इक्वल राइट मिले. पर जब एग्रीकल्चर का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों की को उतना फूड भी नहीं मिला जो उनकी डेली नीड को पूरा करने के लिए जरूरी था. तो लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, द पीपल वर वल्नरेबल एंड दे वर नॉट हैविंग द फूड फॉर देयर डेली यूज. सो कलेक्टिव फार्म्स के एंड ने उन छोटे और पुअर लोगों को, दोज हु नॉट हैविंग द एक्सेस ऑन द रिसोर्सेज, दे पुट द पीपल इन द डिलेमा. देन रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड. अब रशिया जो था वो उसने फूड का इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. देखिए किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन होती है व्हेन दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू ग्रो द फूड फॉर देयर ओन नीड. अपनी नीड के लिए भी वो फूड को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. दैट्स व्हाई जो रशिया था दे वर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज. रशिया जो था दूसरी कंट्री से फूड का इंपोर्ट करने लगा. मतलब कंडीशन वर्स्ट हो गई. हमने इकोनॉमी चेंज करी है, हमने आइडियोलॉजी बदली है, तो उस बदली हुई आइडियोलॉजी ने पूरी कंट्रीज के सिनेरियो को चेंज कर दिया. और देखिएगा जीडीपी, देखिए आप जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट को शो करता है, 89 से 99 के बीच में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई. डिक्लाइन हो गई और 1 पॉइंट बी डिसमिस हियर, वैल्यू ऑफ रूबल. जो करेंसी थी रशिया की रूबल,
उसकी वैल्यू भी कम होती गई, क्योंकि किसी भी करेंसी की जो स्ट्रांगनेस होती, स्ट्रेंथ होती है, वो वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलप करती है। तो जो वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हुआ तो वहाँ पे रूबल की जो वैल्यू थी वो भी कम होती गई। नाउ ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव। हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो व्यापार हो रहा था, दैट सिस्टम वाज आल्सो चेंज इन शॉक थेरेपी। बट आप व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज सम सिस्टम, यू नीड टू पुट सम अल्टरनेटिव। आपको उसका अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। But without any alternative, the system was changed. So people were facing so many problems regarding that how to deal with the new system, and when the no alternative is there, then what about the trading? जो छोटे और बड़े traders थे, it was the question in front of them how to deal with the issues. वो उन issues को कैसे deal करें, अपनी trading को कैसे develop करें। तो जब ओल्ड सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ तो ऐसा कोई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर सामने नहीं लाया गया कि लोग तुरंत उसको स्विच ओवर हो जाते। द नेक्स्ट में विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज कॉज पॉवर्टी। अब हमने हमेशा से पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, जहां पे इंडिविजुअल बेनिफिट की हम बात करते हैं, तो दे डोंट सी द बेनिफिट ऑफ ऑल, दे सी द बेनिफिट ऑफ देयर ओन। तो जो सब्सिडीज दे रखी थी सोशलिज्म में, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जिससे कि जो आपका पुअर क्लास है, ये जो आपका लोअर क्लास है, उस तक वो फायदा पहुंचे। बट व्हेन दिस हैपेंड, जब ऐसा हुआ कि इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई, तो सब्सिडीज देनी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, और उसको करने से जो छूट नहीं मिली तो लोग और गरीब होते हैं। उनको अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी कोई जरिया नहीं मिला। माफिया इमर्ज टू कंट्रोल मेनी इकोनॉमी। जैसे हमने पहले बात की थी कि मार्केट फोर्सेस जो थी वो डायरेक्ट कर रही है, तो एक माफिया बन गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल बन गया जो ओन बेनिफिट के लिए इकोनॉमीज को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ना कोई पॉलिसी थी, ना उसका कोई सिस्टम था। इसलिए दैट माफिया वाज कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर सिस्टम। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पार्टीज। अब लोगों में एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव, डिस्पार्टीज क्रिएट हुई। कैसे? रशिया में दो आपके पार्ट बन गए, पुअर और रिच। सोशलिज्म में क्या होता है? वी वॉन्ट टू टेक ऑल टुगेदर, वी वॉन्ट टू गिव द बेनिफिट टू ईच एंड एवरीवन। बट द आइडियोलॉजी विच इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, it is only going to focus on the rich ones or those who are having the resources. So Russia में two part बन गए, rich and poor. The construction of democratic institutions was not given same attention and priority as the demand of economic transformation. हमने जब शॉक थेरेपी की बात की थी तो हमने कहा था कि लिबरल डेमोक्रेसी जो थी उसको एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। बट इट वॉज ओवरलुक्ड, इसको निग्लेक्ट किया गया और सारा ध्यान, ऑल फोकस वॉज गिवन ऑन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सारा फोकस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे दिया गया, ना कि इस बात पर कि वहां पे हमें डेमोक्रेसी भी स्टैब्लिश करनी है, जबकि ये बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि वो कंट्री जो थी वो सोशलिस्ट बेस्ड थी। तो वहां उन लोगों को जो बहुत लोअर के पर्टिकुलर सेक्शन के हैं, उनको अप स्ट्रीम तक लाने के लिए, उनको इक्वालिटी तक लाने के लिए डेमोक्रेसी वाज रिक्वायर्ड, बट इट वाज नेग्लेक्टेड। सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया। सो दिस वाज द ग्लिम्स ऑफ शॉक थेरेपी कि ये थी क्या और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो जब वन बाय वन हम इसकी कॉन्सिक्वेंस देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इंसिडेंट थी जो उस समय हुई, एंड इट वाज नॉट वेरी मच प्रॉपर्ली प्लान्ड, जिससे कि सोशलिस्ट कंट्रीज उसके लिए प्रिपेयर होते, वहाँ की इंडस्ट्री प्रिपेयर होती, अल्टरनेटिव सिस्टम होता, वहाँ पे जो डिस्पार्टीज हुई वो नहीं हो पाती, गवर्नमेंट एक प्लान बनाती, इसके अलावा सभी के फायदे की बात डेमोक्रेटिक वे में सोची जाती, बट इट वॉज नॉट हैपन। सो लेट्स हैव द रिवीजन ऑफ दैट। क्या हुआ था ये कि इसने रूट किया इकोनॉमी क्यों?
को और डिजास्टर लाए लोगों के लिए। नंबर 2, रशिया में लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स था उसका कोलैप्स हो गया। 90% जो इंडस्ट्रीज थी दैट नीड टू बी गो टू द प्राइवेट सेक्टर। देन इन सब के लिए कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी, मार्केट फोर्सेस इनको गाइड कर रही थी। ये वर्चुअल डिसअपीयरेंस कहलाया सारी इंडस्ट्रीज का। इट वॉज लाइक अ लार्ज गैरेज सेल जहां पे वैल्यूड इंडस्ट्रीज को भी डीवैल्यूड कर दिया गया। देन वाउचर्स दिए गए लोगों ने उसको ब्लैक कर दिया और वो इसलिए किया क्योंकि दे वांटेड टू गेट द मनी। देन वैल्यू ऑफ रूबल वाज डिक्लाइन, रशियन करेंसी की जो वैल्यू थी वो डिक्लाइन हुई। हाई इन्फ्लेशन, जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी तो लोगों ने अपनी सेविंग को लॉस किया, दे वर यूजिंग देयर सेविंग्स। कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया और लोग फूड के लिए भी दे वर वल्नरेबल, फूड सिक्योरिटी भी नहीं रही। रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड, रशिया ने फूड इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। जीडीपी 1989 से 1999 के बीच में कम हो गई। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो था उसने क्या किया, कोई अल्टरनेट नहीं रखा, वो तो खत्म हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर, बट उसके साथ में कोई अल्टरनेट नहीं था जिससे वो लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते। अब गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज को विड्रॉ कर लिया जिससे कि पॉवर्टी बढ़ गई। माफिया इमर्ज हुआ जिसने इकोनॉमीज को कंट्रोल किया। प्राइवेटाइजेशन ने न्यू डिसपार्टीज क्रिएट की और रशिया जैसी कंट्री में रिच और पुअर दो क्लास बन गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इतना फोकस नहीं किया गया जितना इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसे फोकस किया। सो दीज वर द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी जो लाई गई सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब कैपिटलिज्म स्टैब्लिश हुआ, वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ, दिस पॉलिसी, दिस पर्टिकुलर थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट इट ब्रॉट सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस विच वर नॉट इन द फेवर ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज, जो उन कंट्रीज के फेवर में नहीं था क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, वैल्यूएबल थिंग्स इनवैल्यूएबल हो गई, डेमोक्रेटिक वे नहीं रहा, लोगों में डिफरेंस आ गया, डिसपार्टीज आ गई, दो क्लास बन गए, रिच और पुअर, करेंसी की वैल्यू नहीं रही, फूड सिक्योरिटी नहीं रही, they were importing the food, so condition became worse for the countries which were going to apply for the capitalists. प्रॉपर प्लानिंग की कमी में माफिया इमर्ज हुआ। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी जो आपको प्रॉपरली अपनी बुक से भी रीड करने हैं और लर्न करने हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थेरेपी क्या थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस तरह से इसने वर्ड सिनेरियो को चेंज किया, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन कम। So you have to be ready to solve any sort of question by reading the content from NCERT. तो जब बुक्स रीड करते हैं सारे कंटेंट जो होता है आपका वन बाय वन टॉपिक वाइज क्लियर होता है। सो डू रीड द टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल सेंड सम पर्टिकुलर वीडियोज रिगार्डिंग शॉक थेरेपी also. So don't forget to watch that. You will get the reference from the videos. So that's all for today. Thank you so much.